اور اس کے بعد آج بٹھنڈی میں اسپیسیفک کیوں نہیں یہ باقی جگہوں منسٹروں کے مکانات ہٹا رہے ہیں؟ بڑے بڑے محلات جن لوگوں نے بنائے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، انڈسٹریز بنائی ہوئی ہیں، جن لوگوں کے نام مالز بنائے، جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں، ان کو ایک ہی کمیونٹی کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ایک ہی کمیونٹی کی طرف یہ انگشت کیوں کر رہے ہیں؟ بڑی افسوس کی بات ہے۔ یہ ایل جی صاحب سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ صرف اور صرف ٹارگیٹ میں بٹھنڈی، سجما، جلال آباد کیوں ہے؟ ہم تو لینڈ گریبرز کے خلاف ہیں۔ اگر بڑے بڑے لوگوں کا ان کو شروعات کی جائے، انہیں نیچے سے سجما اور اسی ایریا کی طرف نظریں ان سبوں کی ہیں، کیوں باقی جگہ پہ کے لیے ان کی نظریں کیوں نہیں ہیں؟ جو بڑے بڑے مالدار ہیں اوپر سے نیچے شروع کرنا چاہے، یہ یہاں بالکل نیچے سے اوپر کو شروع کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ غلط ہے۔ اور ہم پورن لوگوں اور سجما کو ہی کیوں ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے سر؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ وجوہات کیا ہے۔ اصل میں یہاں پہ جو ایک ہی کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسی وجہ صاف کہنا چاہے، اسی وجہ سے شاید ان کی نظر ہی نہیں لوگوں پہ، کیونکہ یہ سرکار جو ہے یہ بالکل کرائٹیریا پہ نہیں چل رہی ہے۔ ان کو کرائٹیریا پر چلنا چاہے، ان کو اوپر سے نیچے کو ڈیمولیشن کرنی چاہے۔ انہوں نے نیچے سے شروع کی ہے۔ 2 لاکھ کا مکان دکان ہے کسی غریب کا تو اڑا دو، ایک آشانہ چھوٹا سا 5 مرلے پہ تو اڑا دو۔ یہ کیوں نہیں 100 کنال والے کو چیر رہے؟ یہ کیوں نہیں 50 کنال والے کو چیر رہے؟ یہ کیوں نہیں بڑے بڑے محلات جن کے بنے ہوئے جو ڈپٹی سی ایم اور باقی رہ چکے ان کو کیوں نہیں چیر رہے ہیں؟ اور یہ بالکل ان غریبوں جو مال موشی پال رہے ہیں، جو بیچارے ایک جھونپڑی میں رہ کے گزارا کرتی اس نظام حدید میں، اس بارش اور برف باری میں، اس سردی کے موسم میں وہ کہاں جائیں گے؟ کہاں کیا بنائے؟ اور اس کے علاوہ یہ گھر اجاڑنے سے گورنمنٹ کو فائدہ کیا مل رہا ہے؟ یہاں تو اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ بلڈوزر چل رہا ہے کشمیر میں سردی کے عالم میں۔ ایک بلڈوزر نہیں، سینکڑوں بلڈوزر چل رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کتنی عورتیں رو رہی، آپ نے نہیں دیکھا کتنے غریب رو رہے ہیں۔ یہاں لوگوں کو بیٹھنے کی جگہ نہیں، وہاں انہیں بالکل 5-10 مرلوں پہ مکان بنائے ہوئے ہیں اور ان کو ہی اجاڑ رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگوں کے کیوں نہیں اجاڑ رہے ہیں اور چھوٹے لوگوں کی طرف ان کی زیادہ نظریں؟ اگر ایل جی صاحب، آزاد صاحب نے ایل جی صاحب سے بات کی، اگر انہوں نے کہا کہ ہم کچھ مرلے چھوڑ دیں گے، ان کو باضابطہ وائٹ پیپر نکالنا ہے، ان کو آرڈر نکالنا چاہے، جو 1 جنوری کو آرڈر نکالا ہے کہ ہم یہ جو 31 جنوری تک یہ سارا ڈیمال، ان کو دوسرا آرڈر نکالنا چاہے، کوریجنم نکالنا چاہے، ہم ان نکات پہ ان 5 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کے رقبہ جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے، یا جو کاشتکاری رقبہ ہے دور دراز ایریاز میں جو گجر لوگ ہیں، کسان ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ان کا جو رقبہ ہے جس پہ وہ گھر پالتے ہیں، جس میں انہیں فصل لگائی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ سنجما بٹھنڈی میں لگاتار پروٹیسٹ چل رہے ہیں اور لگ بھگ 3 دن کے لیے بٹھنڈی اور سنجما بند ہے اور بند کی کال دی ہوئی ہے۔ حالانکہ عام شہری جم کر ویرودھ اندولن کر رہے ہیں، روڈوں پہ نکلے ہوئے ہیں اور سرکار کے اس فرمان کے خلاف جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر جو جموں کشمیر کی ریجنل پارٹیز ہیں کیا سٹینڈ ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی سے سینئر لیڈر جناب سروری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے تفصیلاتی طور پہ سمجھیں گے کہ آخرکار یہ سرکار کا تغلقی فرمان جو ہے اس سے عام شہریوں کو کتنی مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ 3 دن سے لگاتار بٹھنڈی کے اندر پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور 3 دن سے بٹھنڈی کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے۔ کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک پارٹیکولر ایریا کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اور جو لوگ یہاں پر پچھلے 100 سال سے رہ رہے ہیں آج ان لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے؟ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جنوری فرسٹ ویک میں سرکار نے آرڈر نکالا کہ 31 جنوری تک مکانات گرائے جائیں، سرکاری لینڈ، گھاس چرائی اور روشنی کی لینڈ جو ہے اس کو واپس کیا جائے اور گورنمنٹ اس پہ قابض ہو جائے۔ مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کے مکان اٹھانا، لوگوں کو بسانے کا حکم ہے، جبکہ یہ پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں PMAY دے دوں، میں مکان لوگوں کو دے دوں، 1.5 لاکھ 1.25 لاکھ دوں تاکہ وہ اپنا چھت بنائیں۔ آج یہ عجیب و غریب دیکھنے کو آ رہا ہے کہ لوگوں کے چھت اڑائے جا رہے ہیں۔ آپ نے اسی عوض میں جو آپ نے بٹھنڈی والا مسئلہ، 3 دن سے یہاں ہڑتال ہے، دکانیں بند ہیں، عورتیں، مرد اور چھوٹے چھوٹے بچے میں نے دیکھے سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں، ترنگا لے کے آئے ہوئے ہیں۔
अगर 100 साल से 50 साल से इन लोगों का कब्ज़ा यहाँ पे है और आज किस तरीके से 4 मरला 5 मरला 10 मरला पे लोगों ने जो यहाँ पे मकानात बनाए हुए हैं उनको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम फुल सपोर्ट कर रहे हैं हमारी DAP पार्टी, क्योंकि हमने पूरी रियासत जम्मू में भी और कश्मीर में भी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया। उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोटेस्ट किया, किश्तवाड़ से लेके कठुआ तक और कश्मीर में भी हो रहा है। लिहाजा हम इसके खिलाफ हैं। जब आज़ाद साहब ने LG साहब से बात की, जम्मू कश्मीर की पहली एक ऐसी कस्टम शॉप जहां पे आपको हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते दामों में दस्तयाब हैं। 80% से 50% डिस्काउंट के दरमियान आपको हर तरह की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल सकती। ट्रेडमिल्स भी बिल्कुल सस्ते दामों पर फराहम की जाएंगी। जम्मू कश्मीर की वाहिद अकेली एक ऐसी कस्टम शॉप जहां पे आपको बिल्कुल जेन्युइन कीमतों पे सब सामान जो है दस्तयाब किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की वाहिद एक अकेली शॉप है जहां पर जरूरी अशिया का सामान 80% तक डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। दिए हुए नंबरात पर राब्ता करें। एंड एड्रेस न्यू सीमेंट कदल श्रीनगर 7006973594। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलिटेंसी के वजह से बाहर से भाग के आए हैं, पीर पंजाल से, चनाब वैली से, बाकी जगहों से और शहरों में बसे हैं। उनको 5 मरला 10 मरला 15 मरला रकबा लेके वो भी कीमतें खरीद से लिया है, यहाँ के लोगों से लिया है। और जिन लोगों के पास अलाटमेंटें थी या किसी के पास कब्जा था 100 साल, महाराजा के वक्त में जब महाराजा ने ज़मीन लोगों को दी, सारी ज़मीन महाराजा की थी। 75 लाख रुपए से महाराजा ने इस स्टेट को खरीदा था और 20% ज़मीन महाराजा ने गाह चराई जो है वो लोगों को दी और बाकी ज़मीन जो है लोगों को काश्तकारी के लिए दे दी। उसमें जितना भी एरिया यहाँ पे था उसको काश्तकारी के लिए लोग, फिर जब बाहर मिलिटेंसी की वजह से लोग अपना सर छुपाने के लिए जम्मू में आए या कश्मीर में या बाकी सिटीज़ में आए तो उन्होंने 4-4, 5-5, 10-10 मरला अपने मकानात बनाए। उसके बाद जब कोविड हुआ तो कोविड में भी तालीमी निज़ाम धर्म भरम हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाहर से आके यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए उनने भी 5 मरला 10 मरला वो कीमतें ख़रीद से लिया और उसके बाद उनकी इंतहा कहीं नहीं कराई और उनने अपने मकान बनाए। गवर्नमेंट ने उनको रोड भी दी, गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन पानी भी किया, गवर्नमेंट ने उनको सैंक्शन बिजली भी की। ये सारे अहकामात कानून के मुताबिक होने के बाद अगर कोई गैर कानूनी काम करता है तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को फर्ज बनता है उसको नोटिस देना, उसको उसी वक्त उठा लेना। ये कौन सा कानून है? एक आदमी एक घर 20 साल 25 साल 30 साल 50 साल से बस रहा है और आपने देखा कि कश्मीर में वो नेडोज वगैरह जो 1938 का है वो, और 1938 में से वो मशहूर मारूफ पूरे हिंदुस्तान में वो वहाँ पे बना हुआ था होटल, उस होटल को उड़ा रहे। और उसके बाद आज ये भठंडी में स्पेसिफिक क्यों नहीं ये बाकी जगहों मिनिस्टरों के मकान तो हटा रहे। बड़े बड़े महलात जिन लोगों ने बनाए, 5 स्टार होटल बनाए हुए, इंडस्ट्रीज बनाई हुई है, जिन लोगों के नाम मॉल्स बनाए, जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनको एक ही कम्युनिटी की तरफ क्यों देख रहे हैं, एक ही कम्युनिटी की तरफ ये इंगिश क्यों कर रहे हैं? बड़ी अफसोस की बात है। ये LG साहब से मेरी मोदमाना गुजारिश है कि सिर्फ और सिर्फ टारगेट में भठंडी, सुजमा, जलालाबाद क्यों है? हम तो लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ हैं। अगर बड़े बड़े लोगों का उनको शुरुआत की जाए, इन्हें नीचे से शुरू की। उन्हें देखे ठाठरी में एक मोची बेचारा शेख बरादरी का बंदा, उसने अपना सर छुपाने के लिए मजदूरी करके एक कमरा बनाया हुआ था सबसे पहले ठाठरी में, उसी रकबे में जहाँ की 400 कनार रकबा जो है लोगों के पास है, वहाँ उसी गरीब का मकान डोजर लगा के हटाया गया। और उसके बाद नई बस्ती में जो मकान हटाए उससे मस्जिद भी क्रैक होगी। आज देखा आपने व्हाट्सएप पे कितनी औरतें मर्द जो है वो रो रहे हैं। ये कहाँ का तरीका है? ये क्या करना चाहते हैं इस रियासत जम्मू कश्मीर में? जब आज़ाद साहब ने LG साहब पे फ़ोन पे बात की तो उन्होंने कहा कुछ मरलात हम
मरले हम छोड़ देंगे, जिनने मकानात बनाए उनको छोड़ देंगे, कुछ जो जिनने छोटे छोटे आशाने बनाए उनको हम छोड़ देंगे, या जिनने काश्तकारी के लिए कुछ थोड़ा सा रकबा रखा है उसको हम छोड़ देंगे, या माल मोशी को जो पालता है उसका जो मतलब रकबा है या जिसको फाट कहते हैं, जाड़ कहते हैं, उसको हम छोड़ देंगे। मगर उसके बावजूद भी उन्हें कोई ऑर्डर निकाला नहीं। उनको ऑर्डर निकालना चाहिए कि हम किसको छोड़ना चाहते हैं और किसको उड़ाना चाहते हैं, ये तो क्लियर करना चाहिए। वर्बली बोल रहे हैं, रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं आया, लोगों की डिमांड है रिटर्न में ऑर्डर आना चाहिए। देखिए हमारी तभी हमारा प्रोटेस्ट जारी है। एक ही पार्टी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, जो आज़ाद साहब की सरबराही में हम पूरी रियासत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम एलजी साहब तक पहुंचे, हम ड्यूकान तक पहुंचे, हम डीसी तक पहुंचे। कल हमने बटोत में तहसीलदार को मैंने मेमोरेंडम दिया। हर जगह यही हाल है। एक दुकानदार वहां मुझे बटोत में मिला, 2 दुकानदार, उन्होंने कहा कि हमने 5 लाख रुपया लोन लिया है और 5 लाख रुपया लोन लेने के बाद हमारे पास 80,000 का माल दुकान पे है, ये हम बेच के रात का अपना गुजारा भी कर रहे हैं और लोन की किस्त भी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल हमारा उजाड़ देंगे। बताइए वो लोन कौन देगा? बताइए उसका वो पैसा कौन देगा? बताइए उसके घर वाले बच्चों को कौन पालेगा? उनकी तालीमी निज़ाम कौन पूरा करेगा? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसके लिए एक स्पेसिफिक एक कमीशन बनना चाहिए जो कि देखे। और इसके साथ साथ बड़ा अफसोस मुझे कि बहुत सारी कॉलोनी आज से 10 साल पहले इन्होंने रिकॉग्नाइज कर दी, रजिस्टर्ड कर दी, और मिनिमम उस पर पैसा दाखिल करने के बाद उनको इंतकालात हो गए। बहुत सारे लोग हैं। और उसके बाद आज इन कॉलोनीज को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जा रहा है? क्यों सीधा ही आके एक ही तरफ ठंडी सुजमा और इसी एरिया की तरफ नज़रें इन सबों की है? क्यों बाकी जगह पे के लिए इनकी नज़रें क्यों नहीं है? जो बड़े बड़े मालदार है, ऊपर से नीचे शुरू करना चाहे, ये यहाँ बिल्कुल नीचे से ऊपर को शुरू करने जा रहे हैं। लिहाजा ये गलत है। और हम पूर्ण लोगों और सुजमा को ही क्यों हमेशा टारगेट किया जाता है? सर देखिए ये बड़े अफसोस की बात है। ये आप खुद समझ रहे हैं कि वजूहात क्या है। असल में यहाँ पे जो एक ही कम्युनिटी के लोग रहते हैं, मैं कहता हूँ कि उसी वजह साफ कहना चाहे, उसी वजह से शायद इनकी नज़र ही नहीं लोगों पे, क्योंकि ये सरकार जो है ये बिल्कुल क्राइटेरिया पे नहीं चल रही है। इनको क्राइटेरिया पर चलना चाहिए। इनको ऊपर से नीचे को डिमोलिशन करनी चाहिए। इन्होंने नीचे से शुरू की है। 2 लाख का मकान दुकान है किसी गरीब का तो उड़ा दो, एक आशाना है छोटा सा 5 मरले पे तो उड़ा दो। ये क्यों नहीं 100 कनाल वाले को छेड़ रहे? ये क्यों नहीं 50 कनाल वाले को छेड़ रहे? ये क्यों नहीं बड़े बड़े महलात जिनके बने हुए जो डिप्टी सीएम और बाकी रह चुके उनको क्यों नहीं छेड़ रहे हैं? और ये बिल्कुल गरीबों जो माल मोशी पाल रहे हैं, जो बेचारे एक झोंपड़ी में रह के गुजारा करती इस जामे हदीद में, इस बारिश और बर्फबारी में, इस सर्दी के मौसम में, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ क्या बनाए? और उसके अलावा ये घर उजाड़ने से गवर्नमेंट को फायदा क्या मिल रहा है? यहाँ तो इकॉनमी तबाह हो जाएगी। बिल्डोजर चल रहा है कश्मीर में सर्दी के आलम में। एक बिल्डोजर नहीं, सैकड़ों बिल्डोजर चल रहे हैं। आपने नहीं देखा कि कितनी औरतें रो रही? आपने नहीं देखा कितने गरीब रो रहे हैं? यहाँ लोगों को बैठने की जगह नहीं, वहाँ उन्हें बिल्कुल 5-10 मरलों पे मकान बनाए हुए हैं और उनको ही उजाड़ रहे हैं। ये बड़े बड़े लोगों के क्यों नहीं उजाड़ रहे हैं और छोटे लोगों की तरफ इनकी ज़्यादा नजरें? अगर एलजी साहब, आज़ाद साहब ने एलजी साहब से बात की, अगर उन्होंने कहा कि हम कुछ मरले छोड़ देंगे, उनको बाज़ाब्ता वाइट पेपर निकालना है, उनको ऑर्डर निकालना चाहे जो 1 जनवरी को ऑर्डर निकाला है कि हम ये जो 31 दिसंबर तक, 31 जनवरी तक ये सारा डिमांड, उनको दूसरा ऑर्डर निकालना चाहे, कोरिजनम निकालना चाहे, हम इन नुकात पे इन 5 मरला 10 मरला 1 कनाल के रकबा जो है उसको छोड़ देंगे। या जो काश्तकारी रकबा है दूर दराज एरियाज़ में जो गुजर लोग हैं, किसान हैं, ज़मींदार लोग हैं, उनका जो रकबा है जिस पे वो घर पालते हैं, जिसमें उन्हें फसल लगाई है, उसको छोड़ देंगे। या जिनके पास भैंसे माल मोशी है, वो जो 90 डिग्री 70 डिग्री जो फाट है या जैसे झाड़ है, उन झाड़ पे माल मोशी को पालते, इकनॉमी तो हमारे मुल्क की उससे बढ़ रही है, रियासत की इकनॉमी बढ़ रही है, ताकि उस पर माल मोशी पाल के वो अपना गुजारा करते हैं। ये इनका कोई तरीका नहीं, डिसिप्लिन नहीं, सिस्टम नहीं। इसलिए जो
26 जनवरी को जनाब अलजी साहब ने कहा उसके लिए बाज़ाब्ता आर्डर निकालना चाहिए कि रिटर्न में आर्डर निकालना चाहिए कि हम किन लोगों को छोड़ रहे हैं और किन लोग, बाकी हम बठंडी और सुजमा के लोगों के साथ हैं बिल्कुल। और जहाँ तक MP ने कहा कि ये जो हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट दरअसल उन्हें आर्डर नहीं पड़ा, गलत कह रहे हैं। हाई कोर्ट ने वहाँ कहा है कि वह छोटे लोग जो है, बाकी लोग जो है, उनके मकानात नहीं गिराए जाने चाहिए। हाँ, जो लैंड ग्रैबर है उनके गिराइए, उनका कौन मान रहा है, को हम तो उनका साथ नहीं दे रहे। हम तो कह रहे हैं जो गरीब है, जिन्हें छोटे आशाने बनाए, जिनको सर छपरे के लिए जगह बनाई, जिनको 15 मरला का 1 कनाल तक है, उनको छोड़ दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ GM सरूरी साहब थे जिन्होंने बेबाकी से और साफ अल्फाजों में जो है सरकार की मजम्मत की है। ख़ास तौर पे इनका फरमाना बिल्कुल जायज़ है और सही फरमा रहे हैं सरूरी साहब कि जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं जिन्होंने 200, 400, 500, 100 कनाल पे कब्ज़ा किया हो, आप उन पर कार्रवाई करें, कोई आपको नहीं रोकेगा। लेकिन एक गरीब मोहताज इंसान जिसके पास 5 से 6 मरले या 10 मरले का एक छोटा सा प्लॉट है और उसमें उसका घर है, अब अगर आप उस पर बुलडोज़र चला रहे हैं तो हमें ये सरकार से उम्मीद नहीं थी कि सर्दी के आलम में, इस कहर में घरों से बाहर निकाल कर हमें जो है वो आप बेघर कर रहे हैं। जहाँ सरकार ये कहती है, कोर्ट ये एक दावा करता है कि शेल्टर मिलना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अगर एक आम शहरी से शेल्टर छीन लिया जाएगा तो वो ऐसे हालात में कहाँ जाएगा। फ़िलहाल ये एक इंपॉर्टेंट तफसीलात थी जो आप तक पहुँचाने की कोशिश की। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी वाहिद एक ऐसी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो लगातार इस पर प्रोटेस्ट कर रही है और आज भी इनके प्रोटेस्ट वादी कश्मीर में मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो हैं वो लगातार किए जा रहे हैं और जम्मू के अंदर भी जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा दिखाई दिए हैं। फिलहाल एक छोटी सी पेशकश आमिर सोहेल के साथ, डेली तस्कीन पे। अल्लाह हाफिज़।